دخل الكلية، يعني هو أخونا. We are all thankful for him because the new generation is going to need another Shaykh al-Islam. So in the future you pray for him. يقولون احنا ممتنين لك وله لانه احنا نحتاج شيخ اسلام جديد ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله يكون هو ان شاء الله هو بركه، والله هذا بركه ننتخبه. هم ان شاء الله لهم طولة العمر، جده وابوه من هسه ان شاء الله ننتخبه، ان شاء الله هو خليفتهم ان شاء الله، ننتخبه كخليفه من هذا المكان، خليفته ان شاء الله، خليفته مبارك ان شاء الله، خليفته ان شاء الله لهم طول العمر. ان شاء الله. شكرا. Thank you very much. نعم. هذا ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله. يأخذون الآية هذا يأخذون الآية. وين هذا تقول له هنا العيش كبير يشترون الآية. أنا رأيت. أنا رأيت. نعم. بس وين؟ الآن هناك يضعوا هناك. وين تعال خلي يأخذون شوية قال الجماعة نقول لهم وين الكويسي؟ واخذ محمد سالم خلينا جوا هناك واحد هذا الولد كان وياكم بالتفريد، اقول له خلي ياخذوا لنا ثريا كبيره الكندي. قول لهم ثريا. نعم ثريا كبيره يشترون لي اياها هنا يخلون لي اياها. यानी कह रहे हैं कि आप देखिए यहाँ पे अगर किसी चीज़ की कमी आप लोग को नजर आए तो जब दोबारा आपको आना हो तो उसको पूरा कीजिए। هذا جنوب الهند، جنوب الهند اشترينا هناك في الإمام أبي يوسف رضي الله تعالى عنه. وياهم؟ لا وياكم؟ لا Just like this one, just like this one. If they can have just like this one. نفس هذا مثل هذا. They can put it there. مثل هذا. هذه هنا واحدة. والاخوان مال جنوب الهند جبتوا لنا اياهم جنوب افريقيا. ذوي جنوب افريقيا في الامام ابي يوسف مثله. جنوب افريقيا के लोगों ने इस तरह का लगाया था. لا لا من الأعظمية اشتريناها منها، هم اشتروها. نعم بغداد من بغداد. انت حاضر هذيش مات الامام ابي يوسف. From the South Africans, they brought it here. They brought it from Baghdad. They put it here. للإمام. جنوب افريقيا. جنوب افريقيا. للإمام. هذا رحمه الله جدنا أول زمان جدنا. وين راح أخوه تعالى محترم سيد إبراهيم سيد عبد الله باني المسجد المبارك هذا جدنا أول زمان في أول زمان. कि जो इनके दादा थे उन्होंने इस मस्जिद की बिना रखी बुनियाद रखी सैयद इब्राहिम। ज़ियारत ये मज़ार शरीफ है। सब लोग दाखिल नहीं होंगे, कुछ लोग। سيد عبد الله سيد ابراهيم وسيد احمد كلهم هنا بانين المسجد المبارك من اول. ये अजदाद किराम हैं आपके यहाँ पे, उनकी मज़ार शरीफ। نعم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. لا إله إلا الله. بسم الله. هذا ما جدنا لا تتلارا दस्तगीरा दिल नवाजा हमको भी मिल जाए सदका रब्बे हब्ली उम्मती का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ومرحوما ومرضيا وتفرقنا تفرقا مرحوما مرضيا بحق الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. حاج جدك خلصان لهمك لا شلون يا ابني لا اتصل على السيارة هي خطوها بالسيارة شلون
इसमें सैयदना शेख उमर सहरवर्दी शाफी बगदादी के ताल्लुक़ से थोड़ी मालूमात इसमें है ज़रूर। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ख़ानदान से हैं, हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर की औलाद से, और अपने वक्त में शाफ़िउल मज़हब के सबसे बड़े फ़क़ीह थे और इबादत और रियाज़त में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाले, और इनको उलूम और तमाम रूहानी निस्बतें खुद उनके चचे से हासिल हुई। ज़ियाउद्दीन अबुल नजीम अब्दुल काहिर बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अमुइस सोहरवर्दी भी उनके चचा थे, जिनसे इन्होंने उनके हाथ पर बैत भी किया उनसे और उनसे तालीम हासिल की। अच्छा, और उसके बाद और उनको जो है उनके चचा को जो कुछ मिला वो कुतुबुल अक़ताब शेख अब्दुल क़ादिर गिलानी यानी गौस पाक के, उनके चचा गौस पाक से फैज़ हासिल करते हैं और फिर वो अपने भतीजे तक पहुंचाते हैं। और फ़क़हा में बहुत ही ज़्यादा आपको तबहुर हासिल था और मजलिस वाज़ में आपके बेशुमार लोग आया करते थे और बेशुमार लोगों को फ़ायदा पहुंचा। काफ़ी कसीर मखलूक को आपने ईमान की दौलत से मुशर्रफ फरमाया। और अपने ज़माने में बगदाद में शेख शयूख थे और आखिरी उम्र शरीफ में आपका मिस्र कोई था ही नहीं उस ज़माने में जिस वक्त आप हयात थे। तो कसीर लोगों ने आपके हाथ में तौबा किया। अच्छा, और सरकार के जो तालीफ़ात हैं उसमें सबसे ज़्यादा मशहूर है अवारिफुल मारिफ। ये तमाम जितने सूफियाँ हैं उसके बाद के ये अवारिफुल मारिफ को एक रहनुमा उसूल के हैसियत से इसको अपने मुताले में रखते हैं। और इस किताब के बाद जितनी किताबें छपी हैं सबने इससे इस किताब से इस्तिफ़ादा किया। अवारिफुल बहुत मशहूर किताब है, समझा। और सिलसिले सोहरवर्दिया की बात, जैसे 4 सिलसिले अब मशहूर है ना, कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, तो सिलसिले सोहरवर्दिया के बानियों में आता ये तरीक़त के 4 सिलसिले हैं।
वमलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. السلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله الصلاة والسلام عليك يا غروس مملكة الله الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلى ماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا حسن وضرب الأرض عليه. اللهم إني أسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. والوالدين والأقربين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وسم لهؤلاء الحاضرين ولجميع من أوصاني بالدعاء. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم وطولك العظيم ولطفك العميم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمة عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبرار والأولاد أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. कल पे लगा हुआ था वो, कल पे लगाओ।
Kacang, porque खादिम की दीदी शायद पाकिस्तानी है। अफगान इराकी كلها अफगान شو क्या देखिए इराकी सब पहलवान ये मज़ार मुक़द्दस जो आप देख रहे हैं, ये मज़ार मुक़द्दस बगदाद शहर में बीच शहर के अंदर मौजूद है। इस मज़ार मुक़द्दस के बारे में तवारीख़ में तो इख्तलाफ है, मगर यहाँ ये मशहूर है कि ये मज़ार मुक़द्दस इमाम मोहम्मद गज़ाली हुज्जतुल इस्लाम अलैहिर्रहमा का है, जिनकी किताब मुकाशिफतुल क़ुलूब है। मगर बहुत सी किताबों में ख़ास तौर पर मराक़िद बगदाद किताब के अंदर आपके मज़ार के मुतालिक एक रिवायत यूँ भी मिलती है कि बगदाद शरीफ में जो मज़ार पाक है वो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार पाक नहीं है, बल्कि आपके भाई हज़रत अहमद गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार है। और इमाम मोहम्मद गज़ाली हुज्जतुल इस्लाम जो इमाम थे, उनका मज़ार पाक तरतूस यानी ईरान में है, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है। वैसे इख्तलाफ है, यहाँ पर मशहूर है कि ये मज़ार इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह का है। अस्सलामु अलैकुम। तालिब दुआ सैयद नूरुद्दीन अशरफी।
प्लेट सीधे से लो। ये बात करते हैं अपन हज़रत इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलाम जब अपना सफ़र करते करते आगे बढ़ते गए और ये आखिर में ये बात तय कर ली कि हमें अब आगे ही बढ़ना है, और रास्ते में हज़रत इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर, उनके बच्चों की शहादत की खबर भी उनको मिल गई थी, मगर वो इत्माम हुज्जत के ख्याल से आगे बढ़ते ही रहे। अभी इस दरमियान में कि आप करबला भी नहीं पहुंचे थे, आपको एक लश्कर दिखाई पड़ा, यजीदियों का लश्कर था। उसके सिपह सालार जो थे कमांडर हजरत हुर थे, और उनको ये हिदायत थी कि उनको घेर करके लाया जाओ, किसी ऐसी ज़मीन पर ठहराया जाए जहाँ ना पानी हो ना खाने पीने का कोई इंतज़ाम हो। ये था उनको हिदायत ये थी। मामलात की संगीनी उस वक्त हज़रत हुर नहीं समझ सके थे। उन्होंने समझा कि बात रफा दफा हो जाएगी, कोई ख़ास बात नहीं है, तो जो यजीदी अहकाम इब्न ज़ाद के ज़रिया पहुँचते रहे उन पर अमल किया उन्होंने, और उनको ये कुछ खबर नहीं था कि कूफियों ने क्या ख़त लिखा और इमाम क्यों आए, बिल्कुल इसका पता नहीं था। उन्होंने अपना लश्कर अलग रखा, हज़रत इमाम ने अपना लश्कर अलग, जो साथ इमाम के आए थे। मगर एक बात का हमेशा लिहाज उन्होंने भी किया कि नमाज के वक्त सब इमाम के पीछे ही नमाज पढ़ते थे। हज़रत हुर और उनके सारे साथ हज़रत इमाम के पीछे ही नमाज पढ़ते थे। और हज़रत हुर ने को जो हज़रत इमाम ने वो खतूत दिखाए तो उन्होंने कहा मुझे इसकी कोई खबर नहीं। फिर उन्होंने एक सूरत ऐसी भी निकाली कि हज़रत इमाम जो हैं रात की तारीकी में किसी और तरफ निकल जाए, हम बाद में जाकर के समझा देंगे किधर निकल गए पता नहीं चला। ये भी शक निकाली उन्होंने। मगर जब हज़रत इमाम रात की तारीकी में, अब किसी का मशवरा ना कबूल करना बिल्कुल, ये भी क्या नाम है तारीखी हैसियत से, बुनियादी हैसियत से ख़राब बात समझी जाती है। तो उनके मशवरे से घूमते फिरते जब आते हैं तो सुबह को वहीं पाते हैं जहाँ से चले थे। इस तरह मुसलसल चलते थे, फिर वहीं आगे अपने को पाते थे, समझा। और उसके बाद जब पूछा भाई ये कौन सी बस्ती है, तो मालूम है कि ये नैनवा है। तो हज़रत इमाम को ख्याल आ गया कि हमारे बाबा जान ने हमको कहा था, इसी ज़मीन से गुज़र रहे थे, कि ये करबो बला की ज़मीन है, यहाँ हुसैन का खून बहेगा। तो उन्होंने क़ज़ाए इलाही पर अपनी रज़ा ज़ाहिर करते हुए पहले उन्होंने ये कोशिश की कि फ़रात की एक नहर जो निकलती थी करीब से, उसके किनारे अपना खेमा लगाएं। मगर इनको हिदायत ये थी कि दरिया से दूर इनको रखा जाए। खैर जैसी हिदायत थी उस हिसाब से खेमा वहाँ हुआ। अब मुख्तसर ये कि जो शहादत का दिन जब आया, वाक़यात तो बड़े तफसीली है, तो हज़रत हुर इस कोशिश में थे कि कोई सूरत मुसालहत की निकल जाए। कभी इब्ने साद से बात करना, कभी इमाम अली मकाम के पास आना, और चाहते थे कोई। इमाम ने भी कुछ शर्तें ऐसी रख दी थी कि हज़रत हुर ने यह समझा था कि अभी शर्त पर बात मुकम्मल हो जाएगी। एक तो ये शर्त रखी थी कि मुझे जाने दो वापस में, और अगर वहाँ नहीं तो दुनिया की किसी गोशे में किसी और तरफ चला जाने दो। और एक शर्त ये रखी थी, कुछ नहीं तो मुझे यजीद के पास ले चलो, मैं उससे खुद बात कर लूँगा। अभी 3 शर्तों में एक शर्त तो मान लेना चाहिए था, कोई भी शर्त।
मगर इब्ने ज़ात की जो जिद थी ये कि नहीं, या तो बैत करे और या फिर जंग, उसका इसरार इस बात पर। खैर कुदरत को ये दिखाना था। हज़रत हुर जब मायूस हो गए हर तरफ से, तो अब उनको ख्याल आया कि हमसे गलती हुई, और वो फिर इमाम की बारगाह में आकर हाजिर होते हैं, ये क्या हमारी गलती माफ हो सकती? घेर के लाने वाला अब आकर इमाम से माफी मांग रहा है और जंग में